Can you just freaking imagine 56% of Canadian citizens are supporting another lockdown to stop the spread of Omicron virus, and 80% of Canadians are supporting another travel ban to ban all direct flights from countries including India. Hey guys, welcome back to my channel. My name is Aniket and I'm back with another fresh informative video. If you're planning to come to Canada in Jan 2022 or let's say in the May intake, this video is going to be super informative for you because इस वीडियो से आपको exact blueprint मिल जाएगा कि आगे क्या steps लेना चाहिए based on the current situation and the COVID cases. Because in this particular video, we are going to discuss two major topics. Number one, whether Canada should go in lockdown phase or not, and whether Canada should be banning direct flights from India. ठीक है, दोनों को अच्छे से इन डेप्थ प्रोज एंड कॉन्स को देखेंगे, सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, एंड देन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल बी गिविंग माय पर्सनल ओपिनियन टू दिस एंटायर सिनेरियो एंड कवर 3 मेजर क्वेश्चंस. नंबर 1, कनाडा लॉकडाउन में जाना चाहिए या नहीं बेस्ड ऑन द केसेस and the situations and the policies that the government is undertaking. Number 2, whether Canada should ban direct flights from India, Air Canada, Air India जो भी है. And finally, whether you should be deferring your semester because अभी classes online चले गए हैं. So what's my personal opinion, pros and cons को देख के I'll be giving my recommendations to you. You can follow so that it will be benefiting your career. So वीडियो को पूरा देखना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाओ because 100K is the goal we have to hit it. And वीडियो को पहले ही लाइक कर दो because a lot of crucial information is coming on your way. And without any further bullshit, let's jump into the video. Alright, so first we'll be talking about the COVID cases. So just look at the screen. You can see that on 23rd of December, that is just a day before, Canada has encountered 20,000 new cases, and trust me on this, majority of it is from Ontario, Quebec and British Columbia. ये 3 major provinces सबसे ज़्यादा population वाले, and celebration month is going on, so this is contributing to the majority of new cases in Canada. So which is a situation of concern. इसके basis पे lockdown होगा या नहीं वो आगे discuss करेंगे. अभी के लिए बस let's analyze the number of cases. Also, you can see in the graph, the 7-day average is 12,000 plus cases, which is really a big number, right? Alright, so coming to the next statistics, we can see in the screen that Canada reported almost 10,665 cases on Monday, 11,690 cases on Tuesday, and almost 15,000 new cases on Wednesday. Like there's an exponential growth to the number of cases, and this is one of the major contributing factors whether Canada should go in a lockdown phase or not. ठीक है, ये सबसे major contribution होगा ट्रूडो गवर्नमेंट के लिए. तो let's see what happens. आगे डिस्कस करेंगे the pros and cons की होना चाहिए या नहीं, as I said. Alright, coming to our next update where Transport Canada has officially tweeted, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, we advise Canadians to cancel or postpone non-essential travels outside Canada. ठीक है, तो this is a very bad situation or let's say a bad update for the people, immigrants, citizens of Canada जिन्होंने भी Canada से बाहर जाना था in this festive month और जो already चले गए हैं उनके लिए this is a very bad update because while they'll be returning to Canada, the border restrictions, IRCC guidelines for people who are returning to Canada, let's say entering Canada, will be super strict. Trust me on this because cases बहुत हाइपर स्पीड से बढ़ रहे हैं कनाडा में. सो जो लोग भी चले गए हैं उनके लिए तो ऑलरेडी बैड अपडेट है ही, बट इफ यू आर प्लानिंग टू गो इन दिस मंथ टू जस्ट मीट योर फैमिली फ्रेंड्स एंड एंजॉय सम टाइम विद देम इन दिस फेस्टिव सीजन, डू नॉट गो. ओमिक्रॉन का केसेस थोड़ा डाउन जाने दो, नेक्स्ट ईयर चले जाना बिकॉज सेफ्टी फर्स्ट. कनाडा में ड्रीम पूरा करना पहला है, फैमिली कैन कम लेटर, यू कैन गो टू मीट देम लेटर, राइट? तो अभी के लिए adjust according to circumstances and plan your steps accordingly. Moving on to our next update, which is from Global News, and it says that PCR tests are now mandatory upon return to Canada for any length of travel. पहले यह था कि अगर आप US जाते हो एंड 2 दिन से पहले 48 आवर्स के विद इन आप रिटर्न कर जाते हो कनाडा में, एंटर कर जाते हो, देन आपको कोई टेस्ट देने का ज़रूरत नहीं था बिकॉज बोथ द कंट्रीज आर ऑलमोस्ट फुल्ली वैक्सीनेटेड, राइट? बट एज आई सेड, केसेज आर इंक्रीजिंग एंड बॉर्डर गाइडलाइंस आर गेटिंग स्ट्रिक्टर एवरी सिंगल डे. तो अभी ट्रैवल मत ही करो एंड इट्स नाउ मैंडेटरी दैट PCR टेस्ट should be done to each and everyone who is entering Canada right now for any length of travel. अगर आप 2 घंटे के लिए भी बाहर जाते हो, which is technically not possible, but फिर से आपको टेस्ट तो कराना ही होगा. Moving on to our next major update, which is regarding lockdown, and it's from Montreal Gazette, a legitimate media company in Montreal, Quebec actually. तो वो लोग बताते हैं कि Premier Legault tightens gathering limits for after Christmas, but no curfew yet. ठीक है, तो वो लोग गैदरिंग को कम कर दे रहे हैं, पॉलिसीज चेंजेस कर रहे हैं ताकि गैदरिंग कम हो, वन स्प्रेड कम हो ओमिक्रॉन एंड कोविड केसेस का, बट अभी तक कर्फ्यू नहीं हुआ है. नाउ इफ़ यू आस्क मी कर्फ्यू होना चाहिए या नहीं, आई विल से दैट अकॉर्डिंग टू माई स्टैट्स एंड रिसर्च, जस्ट न्यू ईयर के बाद से जब सेलिब्रेशन खत्म हो जाएगा, 2nd, 3rd, 5th, लेट्स से 2nd वीक ऑफ जैन से कर्फ्यू लग जाना चाहिए बिकॉज
केसेस बढ़ रहे हैं, सेलिब्रेशन का मंथ है, इसीलिए टू नॉट अपसेट पीपल गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग द कर्फ्यू स्टेप. सो जस्ट सेकेंड वीक से होना चाहिए कर्फ्यू एज पर माई रिसर्च, एंड दैट विल अफेक्ट सिग्निफिकेंटली पार्ट टाइम जॉब का स्कोप को अफेक्ट करेगा. एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स टू गेट पार्ट टाइम जॉब इन ओंटारियो प्रोविंस और लेट्स से क्यूबेक और ब्रिटिश कोलंबिया. एंड इट विल ऑल्सो इंक्रीज द चांसेस ऑफ डूइंग अ फुल लॉकडाउन इन कैनेडा, specifically the province Ontario, British Columbia and Quebec. Alright, another major update regarding lockdown is that Quebec shuts down schools, bars, gyms and more as COVID cases count short. ठीक है, जितना कोविड केसेस बढ़ रहा है क्यूबेक इज शटिंग डाउन थिंग्स एंड दैट इज अ सिग्नल कि लॉकडाउन जल्दी होगा. एंड अगर क्यूबेक में लॉकडाउन होता है, ट्रस्ट मी, स्टेट वाइज अगर लॉकडाउन होता है तो ओंटारियो में डेफिनेटली होगा, बिकॉज द पॉलिसीज दैट आर अंडरटेकन बाय क्यूबेक इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू ओंटारियो. सो आगे पीछे ओंटारियो में वही सेम चीज़ होना है. तो इसीलिए हम जस्ट अवेयरिंग यू, नॉट डीमोटिवेटिंग यू, अवेयर कर रहा हूँ कि अगर आप कनाडा आते हो ट्रैवल बैन से पहले, गॉड फॉरबिड ट्रैवल बैन ना हो इसके पहले आप आ जाओ कनाडा में, बिकॉज आई नेवर वांट कि वो हरासमेंट, वो रीशेड्यूलिंग का चक्कर वगैरह आप किसी के साथ भी हो. और आई फेस्ड इट. अगर हुआ है, गॉड फॉरबिड नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है देन यू कैन जस्ट शेयर योर स्टोरी विथ मी टू गेट अ पीस ऑफ माइंड. आई लिसन विथ ऑल माई ईयर्स. यू कैन जस्ट डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम देयर फॉर यू. ठीक है, तो अगर ट्रैवल बैन के पहले आप कनाडा आ जाओ तो इन मे इनटेक और लेट्स से जैन इनटेक 2022, देन मेक श्योर यू हैव बैकअप फंड्स विथ यू इन योर Forex कार्ड सो दैट यू कैन सर्वाइव इन कैनेडा विदाउट गेटिंग अ पार्ट टाइम जॉब फॉर लेट्स से 2-3-4 months. ठीक है, Forex कार्ड में आप घर वाले से पैसा भिजवा भी सकते हो अपने अकाउंट में, सो दैट यू कैन सर्वाइव. बिकॉज आई एम सेइंग यू रिपीटेडली, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है पार्ट टाइम के लिए. एंड विंटर्स का महीना चल रहा है जहाँ पे स्कोप ऑलरेडी कम होता है. एंड अभी कोविड के लिए शटडाउन्स हो जा रहा है, बिजनेसेस आर ऑपरेटिंग इन 50%, 25% कैपेसिटी. तो अभी कोई एम्प्लॉयर हायर नहीं करना चाह रहा है बिकॉज उनके पास फंड्स ही नहीं है. एंड गवर्नमेंट ऊपर से सपोर्ट कर रहा है बिजनेसेस को कि आप पैसा ले, मतलब आप हमसे पैसा लो एंड देन यू सर्वाइव इन दिस पैंडमिक सिचुएशन, राइट. तो पार्ट टाइम का स्कोप बहुत अभी कम है, तो मेक श्योर यू हैव बैकअप फंड्स विथ यू टू सर्वाइव इन कैनेडा इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशंस. बाद में यू कैन ऑब्वियसली मेक योर ओन वे. Alright, this news is quite similar to what's happening in British Columbia. आप स्क्रीन पे देखो, British Columbia says that it will ban indoor organized events, shut nightclubs and keep home gatherings small. So the major provinces like Quebec, British Columbia taking the same policies, वही undertake हो रहा है. So make sure you know this and मुझे trust करो, I'm saying this कि Ontario में भी आगे पीछे यही same policies undertaken होना है. and lockdown का chances है, ठीक है, पहले कर्फ्यू होगा फिर lockdown का chances है, complete shutdown in entire Canada if the COVID cases keep spiking up. So make sure अगर आप कनाडा आते हो तो मेन मनी विल हेल्प यू इन एवरी आउटलुक ऑफ लाइफ. ठीक है, मनी आपके पास होना चाहिए, बैकअप फंड्स होना चाहिए. पार्ट टाइम मिलना है तो बढ़िया है, अगर नहीं मिलता है देन यू कैन सर्वाइव एंड बी एट योर होम, ऑर्डर फूड एंड ईट, राइट. एवरीथिंग विल बी परफेक्ट इफ यू आर हैविंग मनी. सो मेक श्योर यू प्लान योर स्टेप्स अकॉर्डिंगली. मेरा काम बस है आपको एक ब्लूप्रिंट दे देना कि सिचुएशन कैसा है, द फैक्ट्स विद प्रॉपर प्रूफ्स एंड अपडेट्स सो दैट यू कैन प्लान योर जर्नी अहेड एंड मेक अ सक्सेसफुल करियर इन कैनेडा. Unfortunately, the last news of this video is again a bad news, which is 56% of Canadians are actually supporting another lockdown. And वो लोग सजेस्ट करें ट्रूडो गवर्नमेंट को कि लॉकडाउन करो टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ ओमिक्रॉन वायरस. अब इसमें उन लोगों का तो गलती कुछ नहीं है, बट इट्स अगेन अफेक्टिंग द इमिग्रेंट्स हु आर प्लानिंग टू कम टू कैनेडा, राइट. तो ठीक है, कुछ कर नहीं सकते, जस्ट नो द फैक्ट्स, प्लान योर स्टेप्स अकॉर्डिंगली. गाली बकने से कुछ नहीं होगा कैनेडियंस को, उन लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है. They'll do their thing, you do your thing and make sure you come to Canada and be a successful, let's say, immigrant, nahi, successful person in Canada. That's it. Alright, let's now address the 3 major questions which I promised to give my personal opinion on in the beginning of this particular video. ठीक है, the first question is, will there be a lockdown in Canada? अब मुझसे पूछोगे तो मैं डायरेक्ट विदाउट शुगर कोट मैं बताऊंगा कि लॉकडाउन होना चाहिए फेब शुरू से. ठीक है, फरवरी का शुरू से लॉकडाउन होना चाहिए इफ़ केसेस कंटिन्यू टू स्पाइक. बिकॉज अभी के टाइम पे हर रोज़ 4000-5000 केसेस, न्यू केसेस बढ़ रहे हैं. ठीक है, डेथ्स भले ही कम है बट केसेस इंक्रीज हो रहे हैं. एंड टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ ओमिक्रॉन वायरस और लेट्स से कोविड-19 केसेस, गवर्नमेंट माइट डू अ कंप्लीट लॉकडाउन, कंप्लीट शटडाउन इन कैनेडा फ्रॉम फेब 2022. जैन से क्यों नहीं होगा? बिकॉज जैन एक फेस्टिव सीजन है, न्यू ईयर का सीजन है एंड अभी उतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है सिचुएशंस, पीपल आर गेटिंग वैक्सीनेशंस. तो अभी के लिए चालू ठीक है, अभी जैसा चल रहा है, अभी सिस्टम जैसा चल रहा है चलेगा, बट फेब से हो सकता है बिकॉज फेस्टिवल्स आर ओवर, कुछ नया नहीं है फेब में, तो फेब से कंप्लीट शटडाउन होने का चांसेस है. Alright, addressing the second major question, which is, will Canada ban direct flights from India? This is a very confusing question, nightmare है स्टूडेंट्स लोगों का, एंड इधर उधर से आपको फालतू का ओपिनियन बहुत सुनने को मिलेगा. So let me just assure you that right now, based on the current situations, I am quite confident that अभी ban नहीं होगा. Yes,
द कैनेडा गवर्नमेंट वोंट बी बैनिंग एनी डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया, तो बी अश्योर्ड आप जनवरी में तो एटलीस्ट आ सकते हो कनाडा में, ठीक है। फेब में क्वारंटाइन जब लॉकडाउन होगा तब बैन ऑब्वियसली हो सकता है, उसका चांसेस है, बट जैन के लिए नहीं होगा, तो जैन एंड टेक स्टूडेंट्स आर क्वाइट सेफ। मे के लिए थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है, ठीक है। उसके लिए अगर कुछ नया अपडेट आता है तो आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो फॉर इट। राइट नाउ द आंसर इज नो, एंड बैन बेसिकली 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1, अगर इंडिया में केसेस बहुत ज़्यादा स्पाइक कर जाते हैं देन कैनेडा गवर्नमेंट कैन बैन फ्लाइट्स, एंड नंबर 2, अगर इंडिया से जो इमिग्रेंट आते हैं पियर्सन एयरपोर्ट पे टोरंटो में, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव होने लगे, ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम इंडिया इंक्रीजेस, जो पॉजिटिव हो रहा है, देन कैनेडा गवर्नमेंट विल बी बैनिंग फ्लाइट्स। बट अभी दोनों फैक्टर ही एकदम मिनिमल है, नॉर्मलाइज्ड है, तो बैन होने का कोई चांस नहीं है। दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन फॉर दिस पर्सपेक्टिव फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Alright, coming to the third and the last question of this particular video, which is, should you defer your semester because classes are online in Canada because of this COVID thing? मेरा आंसर है, as a brother I'm telling you that never ever defer your semester and always choose time over academics, no matter how much you value your education, ठीक है। Always time को choose करो, academics को उसके just नीचे रखो, ठीक है। बिकॉज इट्स माई ओपिनियन, इट्स माई पर्सपेक्टिव, आप फॉलो कर सकते हो नहीं कर सकते, मुझे तो फ़ायदा मिला है एंड आई एम ग्रोइंग इन माई लाइफ, ठीक है, थोड़ा बहुत तो ग्रो कर ही रहा हूँ। एंड दैट इज़ बिकॉज आई ऑलवेज सी दिस इन दिस वे कि जब आप मार्केट में जाओगे, वंस योर डिग्री इज ओवर, बैचलर्स और मास्टर्स, 2 साल का MBA, PhD, वट एवर इट्स when it's over and you now are doing a job or research, whatever it is, जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, इट्स नॉट योर डिग्री, वट मैटर्स द मोस्ट इज हाउ मच पैशन, हाउ मच हंगर यू आर हैविंग टू परस्यू योर गोल्स, टू कट थ्रू द बुलशिट and make a name for yourself in the market. It's more about the willpower and the skill sets rather than whatever you have mugged in those 2 years of MBA, right? तो आप defer करते हो, online पढ़ते हो, आके पढ़ते हो, doesn't really matter. Nobody gives a shit about your degree when you're driving a Lamborghini, right? So make sure you have the passion, you have the will, you have the hunger. You study from outside books rather than just your academics. Focus on generating skill sets, soft skills, hard skills like communication skills, how to manage people, leadership, sales skills, ठीक है, video editing सीख लो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लो, फ्रीलांसिंग का अकाउंट बना के ट्राई इट आउट। सो मेक श्योर यू हैव डिफरेंट वेज टू मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ इन द मार्केट एंड बी सक्सेसफुल, नॉट जस्ट रिलाई ऑन द कॉलेज कि आप पर कहाँ से रहे हो, इट डजंट रियली मैटर इन लाइफ। सो इट्स माई पर्सनल ओपिनियन एज अ ब्रदर, make sure you do not defer your semester. Alright guys, that was pretty much it. I have covered every major update जो Canadian government से आया है, and I hope all the questions are cleared. अगर कुछ question बचता है then you can just DM me on Instagram or comment down below. I'll be definitely replying regarding lockdown, travel ban or should you defer your semester or not. अभी के लिए अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, because 100K is the goal, we have to hit it. And अगर वीडियो दिल से पसंद है तो ये वीडियो किसी भाई बहन के साथ शेयर कर दो who is willing to come to Canada so that he or she can get the exact blueprint regarding the situations in Canada and plan their steps accordingly. तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Stay awesome, stay sexy. तनिकेत शाह signing off for the day.